السلام علیکم، میرا نام عائشہ ارننگ والی ہے اور میں ریحان اسکول میں اے آئی ٹیچرس ٹریننگ لیول 1 کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ہماری ایک کلاس فیلو اور ایک نہایت ہی قابل قدر باصلاحیت اور باوقار شخصیت، جن کو ہم خوش آمدید کہنے جا رہے ہیں۔ ہماری آج کی مہمان نہ صرف اپنے شعبے میں نمایاں مقام رکھتی ہیں، بلکہ اپنی محنت، لگن اور مثبت سوچ کے ذریعے بے شمار لوگوں کے لیے ایک روشن مثال بھی ہیں۔ ان کی شخصیت میں علم، تجربہ اور عاجزی کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں مختلف چیلنجز کا نہایت حوصلے اور دانشمندی سے مقابلہ کیا، اور آج وہ کامیابی کی ایک ایسی منزل پر کھڑی ہیں جہاں سے وہ دوسروں کو بھی آگے بڑھنے کی ترغیب دے رہی ہیں۔ آج ہم ان کے خیالات، تجربات اور رہنمائی سے فائدہ اٹھائیں گے اور ہم سب کے لیے نہایت مفید اور متاثر کن ثابت ہوں گی۔ ہمارے مہمان کا نام ہے مس پوجا ٹریننگ والی۔ السلام علیکم مس پوجا، وعلیکم کیسی ہیں؟ السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے میں عائشہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا، مجھے اس قابل سمجھا کہ میں بھی آپ کی پروفائل میں آ کر اپنے تجربات اور کامیابی کے بارے میں گفتگو کروں۔ سو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ یو آر موسٹ ویلکم۔ آپ کا بھی بہت شکریہ جس نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ مس پوجا، میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنا مختصر تعارف کروائیں۔ جی بالکل۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام پوجا کماری ہے بیسیکلی، بٹ ابھی چونکہ میں ریحان اسکول کی طالب علم ہوں تو ابھی میں ایز اے ریحان پوجا ٹریننگ والی پہچانی جاتی ہوں۔ اس کے علاوہ میرا تعلق حیدرآباد سندھ سے اور میری عمر 26 سال ہے، اور میں ایک ہاؤس وائف بھی ہوں، ایک بچے کی ماں بھی ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے گریجویشن کمپلیٹ کی ہوئی ہے بی ایس سی ان اپلائڈ لنگوسٹک فرام ورچوئل یونیورسٹی آف حیدرآباد سندھ، اور اس کے علاوہ مجھے تھوڑا بہت تقریباً 1-1.5 سال کا ایکسپیرینس ہے، جس میں نے بہت کچھ چیزیں سیکھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بارے میں، کہ کیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم رن کرتے ہیں، کیسے کنٹینٹ بناتے ہیں، گرافک ڈیزائننگ کا تھوڑا بہت اسکل ہے، اور ایڈیٹنگ بھی مجھے آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کرنٹلی میں ریحان اے آئی ٹیچرس ٹریننگ بیچ 21 کی طالب علم ہوں۔ تو یہ تھا میرا چھوٹا سا انٹرو، باقی میں عائشہ جو بھی آپ پوچھنا چاہیں، یو آر موسٹ ویلکم۔ جی بالکل۔ اچھا مس پوجا، میں آپ سے آج اے آئی کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی۔ آپ کے خیال میں مصنوعی ذہانت جو ہے وہ آج کے عالمی جاب مارکیٹ پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے؟ جی دیکھا جائے تو یہ جو اے آئی ہے نا، یہ سمجھیں کہ ہمارا فیوچر ہے۔ صرف ہمارا فیوچر نہیں ہے، سمجھیں کہ ہمارا پریزنٹ بھی ہے، ہمارے پریزنٹ سے کنیکٹڈ ہے۔ اب یہ جو اے آئی ہے وہ ہماری جاب مارکیٹ پہ ایسے اثر کرتا ہے کہ جیسے کہ پہلے بہت زیادہ لوگوں کی جابس ہوتی تھی، جیسے کہ میں ریحان اسکول کی ایگزامپل آپ کو دے دوں۔ جیسے کہ پہلے مطلب ہمیں لوگوں کو جو مطلب ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یا جن کے جو بھی سوالات ہوتے ہیں، ایک ایڈمیشن مینیجر ہوتا تھا جو ان چیزوں کو ہینڈل کرتا تھا، لوگوں کو ریسپانس دیتا تھا، اور کبھی بچے کوسچن کرتے تھے تو لوگ اویلیبل نہیں ہوتے تھے، تو یہ بہت ہی مشکل ہوتا تھا، کیونکہ ایک بندے کا 24 آورس اویلیبل رہنا بالکل ہی مشکل ہوتا تھا۔ اب کیا ہے، یہ اے آئی ٹولس آ گئے ہیں، آٹومیشن ٹولس، جو کہ ہمیں مطلب ایٹ اے ٹائم آنسر دیتے ہیں۔ پہلے مطلب ہمیں 4 بندوں کی نیڈ ہوتی تھی، 6 گھنٹہ یہ رہے 6 گھنٹہ یہ رہے، جو کہ مطلب نیٹ ورکنگ کرے بندوں سے اور بندوں کے کوسچن کا جواب دے، تاکہ ہمارے سسٹم کی سروس اچھی ہو، لوگوں کو ٹائملی ریسپانس ملے۔ تو بندوں کی نیڈ ہوتی تھی پہلے۔ اب یہ کہ اے آئی ٹولس جو ہیں وہ ہمیں مطلب ٹائم سے رپلائی دے رہے ہیں، اور اس سے مطلب ہمارا ٹائم بھی بچ رہا ہے، تو اس سے یہ مطلب جاب مارکیٹ میں اضافہ کر رہی ہے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ اچھا مس پوجا، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے، کیا آپ اے آئی کو روزگار کے لیے موقع سمجھتی ہیں یا خطرہ، اور کیوں؟ جی بالکل، خطرہ تو یہ بالکل بھی نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہے، ایک بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہے، خاص کر کے میں کہوں گی کہ ہم خواتین کے لیے، کیونکہ اب دیکھیے نا، آج آپ اور میں کنیکٹ ہوئے کس وجہ سے؟
एआई की वजह से। वैसे तो मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं, आप नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, ठीक है ना? हम एक लॉन्गर डिस्टेंस पे भी हैं, तो हम कनेक्ट किसके थ्रू हैं? एआई के थ्रू। एआई के ये थ्रू। साइंस है, ये एक टेक्नोलॉजी है, ये एक एआई है जो कि लोगों को मिला रही है, उनके नेटवर्क्स बढ़ा रही है। तो ये एक एआई हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप देखें कि पहले बहुत ज़्यादा ख़वातीन होती थी जो कि इंटर पढ़कर बस बैठ जाती थी, या जिनको मतलब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है ना कि उनको अपना फेस नहीं दिखाना, या उनको मतलब बाहर नहीं जाना, वो ज़्यादा तालीम नहीं हासिल कर सकती थी, उनको जॉब करने की नहीं होती थी मतलब परमिशन। मैं अगर अपनी मिसाल दूँ तो मुझे खुद बचपन से बहुत ज़्यादा जॉब करने का शौक होता था। मतलब ये होता था कि बस मैं एक स्किल सीखूँ। मैंने ये जो ग्रेजुएशन भी की थी वो भी मैंने इसलिए की थी क्योंकि मुझे टीचिंग का शौक होता था। तो मैंने एक स्कूल में पूछा कि तब मैं थी इंटरमीडिएट, मेरा क्लियर था, तो मुझे बहुत शौक होता था। हमारे पड़ोस में एक स्कूल होता था कि मैं वहाँ पे जो है ना टीचिंग करूँ, मैं मतलब जॉब करूँ, जॉब और जॉब, मुझे मतलब टीचिंग का शौक होता था कि मैं पैसा कमाऊँ। तो मैंने उस स्कूल में पूछा कि मुझे एज अ टीचिंग की जॉब करनी चाहिए तो मेरी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि अभी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैंने कहा अभी तो मैं सिर्फ इंटरमीडिएट हूँ। तो उन्होंने कहा है कि आपकी बैचलर्स एटलीस्ट कंप्लीट हो, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, तभी हम आपको देंगे। तो मैंने इसीलिए बीएससी किया इंग्लिश में। तो मुझे बहुत मतलब होता था कि मैं जॉब करूं, लेकिन मेरी फैमिली होती थी रिस्ट्रिक्टेड, मतलब हमारा कन्वेंस का भी इशू होता था कि कौन आपको पिक एंड ड्रॉप करेगा, और ये भी रिस्ट्रिक्शन होती है कि हमें ड्राइवर के साथ अलाउ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जानती हैं कि पाकिस्तान के माहौल कैसा है, तो ये रिस्ट्रिक्शन होती थी। तो अभी अगर देखा जाए तो मेरा ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ये रिस्ट्रिक्शन होती थी कि आप जो है ना घर से बाहर निकल कर जॉब नहीं कर सकती। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मतलब आइडिया दिया कि एआई भी कोई चीज़ है, आप ऑनलाइन बैठकर कुछ रिसर्च करें, टिकटॉक है, क्रिएटर रिवार्ड है, यूट्यूब ऑटोमेशन है, तो आप मतलब घर बैठकर भी आप मतलब इसको यूटिलाइज करके आप बहुत कुछ सीख भी सकती हैं। और इवन कि सीखने के बाद आपको अगर एक स्किल आ जाएगा तो आप अर्निंग स्टेज पे भी एक दिन डेफिनेटली कभी ना कभी आएंगी। तो ये एक बहुत अच्छी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। जो ख्वातीन हैं वो पढ़ना चाहती हैं, पहले उनको ये एक्सक्यूज़ होता था कि भाई हमें तो घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, हम कैसे बाहर निकलें, हम कैसे एजुकेशन हासिल करें, हम कैसे मतलब जॉब करें, हम कैसे कमाएं। हम औरतों के लिए तो बस यही होता है कि बस नहीं, अपने घर संभालना है, बच्चों को संभालना है, नहीं। लेकिन ये जो एआई है इसने मतलब लोगों की सोच को तब्दील किया है कि नहीं, एक ख्वातीन भी बहुत कुछ कर सकती है। अब हमें लाजमी नहीं है, जैसे यूट्यूब ऑटोमेशन की अगर मैं बात करूँ, या टिकटॉक क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम भी, वहाँ पे हम क्या करते हैं, एआई कंटेंट बनाते हैं, जिसमें क्या है कि हमें अपना फेस नहीं देना होता, ना ही अपनी वॉइस देनी होती है, ना ही टिकटॉक वालों को पता होता है कि हम कौन हैं। बस वो देखते हैं कि हम एक क्रिएटर हैं और हम एक एडिटिंग करते हैं अच्छी, और हमारी वीडियो वायरल जा रही है। तो ये एआई बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अच्छी है हमारे लिए कि हम अच्छी एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं घर बैठकर, एक अच्छा मतलब बिजनेस वुमेन भी बन सकते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग भी हो सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट, बड़ी बात कि हम एक इंडिपेंडेंट वुमेन भी बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो एआई बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे एआई मतलब बहुत सी जॉब्स के ऊपर असर अंदाज हो रहा है, लेकिन वो बहुत सी जॉब्स के मौके भी फराहम कर रहा है। बिल्कुल। देखिए ना आप, पहले जो होता था ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कितना मतलब ज़्यादा रोल होता था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले मतलब लाखों लाखों रुपए कमाते थे। ये उनका स्किल भी था, ये उनकी क्रिएटिविटी भी था, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इनकी जॉब को रिप्लेस कर रहा है। लेकिन मतलब कई हद तक मतलब एक बोलते हैं ना कि ट्रेंड चल रहा है इस चीज़ का, कई हद तक मतलब इसको मतलब ट्रेंड इसका नीचे हुआ है। क्योंकि अब क्या होता है कि पहले हम क्या करते थे, कैनवा पे जाकर, अभी भी लोग कर रहे हैं नो डाउट, अभी भी लोग कह रहे हैं, लेकिन एक ट्रेंड होता है ना, रिड्यूस होता है। तो अभी जो है हुँ, ना इसका ट्रेंड रिड्यूस हुआ है, कैनवा पे अब लोग नहीं बनाते। अब एक टूल शायद ही आपने नाम सुना हो, विडाइक्यू टूल है। वो पेड भी है। उसको अगर आप अपने चैनल का लिंक देते हैं ना, मतलब उसको पता है कि ये मेरा चैनल है, या उसको आप लिंक दे दें और ये चैनल जो है ना अपने चैनल से कनेक्ट कर दें, और अपने कॉम्पिटिटर का लिंक दे दें कि मैं भी इस टाइप का कंटेंट बना रहा हूँ, आप मेरी इस वीडियो के लिए थंबनेल बना दें। तो वो अगर आपके चैनल में किसी भी बंदे की पिक लगी हुई होती है ना, या मतलब आपकी लगी हुई है, या आपकी पर्सनैलिटी, वो उसी मतलब इमेज को ऐड करके आपको एक
अच्छा सा थंबनेल बना के देगा और विद इन सेकेंड। इसके अलावा अगर आप पेड टूल नहीं भी यूज़ करना चाहते ना, तो चैट जीपीटी है वो तो हमें फ्री में भी बहुत कुछ करके देता है। जी, मैं तो कहती हूँ कि आजकल के हर शख्स को, नौजवान को, बच्चे को, टीचर को, पेरेंट को, स्टूडेंट को, सबको चैट जीपीटी तो मतलब एक रेगुलर रूटीन में उसको इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। चैट जीपीटी रोज़ उनको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अब हम चैट जीपीटी को हमें सिर्फ एक बात करनी आनी चाहिए। जिस तरह से हम कहते हैं कि हमने कोई डील डन करनी है किसी बंदे से, तो हमें बात करनी आनी चाहिए ना, तभी हमारी डील मतलब वो हमें समझेगा कि हाँ ये अच्छा टॉकेटिव है, इसको इतना नॉलेज है। तो चैट जीपीटी भी इज लाइक दैट कि हमें उससे मतलब हमें उसे कमांड देनी आनी चाहिए। सपोज करें आप चैट जीपीटी को बोलती हैं कि मुझे जो है ना एक थंबनेल बना लाएं, इस तरह का थंबनेल बना लाएं, एक मतलब जैसे हम कहते हैं कि 10 वेज ऑफ अर्निंग, मुझे वो लिखनी, और एक अच्छा सा मतलब वाओ, कोई एक एक्साइटेड बंदा हो जिसमें, और नीचे से हुँ, डॉलर का साइन ऐड कर दो। तो आप जो भी उसको बेशक आप किसी भी लैंग्वेज में बोलें, अरबी में बोलें, पंजाबी में बोलें, सिंधी सिंधी मुझे श्योर नहीं है कि वो समझता है या नहीं समझता, इंग्लिश में बोलें, उर्दू में बोलें, वो आपको सुनेगा, हर लैंग्वेज में आपकी बात को समझेगा और आपको उसके मुताबिक चीज़ बना के देगा। तो मैं ये नहीं कह रही कि रिप्लेस कर रहा है चीज़ों को, लेकिन मतलब कई हद तक मतलब उनको रिड्यूस कर रहा है। अब मतलब बंदे खुद ही चैट जीपीटी को कमांड देकर थंबनेल बना रहे हैं। पहले लोग मतलब सर्विस लेते थे, लोगों को पैसे देते थे और इन रिटर्न वो उनको थंबनेल बना के देते थे, या कुछ भी जैसे इनविटेशन कार्ड हो गया, जैसे लोगो हो गया, इसके अलावा जैसे बिजनेस कार्ड हो गया। तो ये सारी चीज़ें अब चैट जीपीटी भी बना के देता है। इवन कि आपने अपनी सीवी भी बनानी है, मैंने रिसेंटली बनाई भी थी अपनी सीवी एक। मैंने उसको अपनी इमेज दी, अपना फ़ोन नंबर दिया, अपना जीमेल दिया और अपना इंट्रो दिया कि मैं ऐसे ऐसे मैंने एजुकेशन की हुई है, मुझे ये एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस है। सारा उन्होंने पुट करके चैट जीपीटी ने बना के दिया। फिर आपने जो भी चेंजेस उनसे करवानी है तो आप उसको जो जो बोलेंगी कि नहीं ये इमेज ऐसी नहीं, मिड में होनी चाहिए, ये ऐसे नहीं, इसका ऐसे होना चाहिए, तो वो आपको करके देता है। बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा मिस पूजा, एआई के दौर में मतलब कौन-सी महारतें जो हैं वो ज़्यादा अहम होती जा रही हैं? देखें, एआई तो हमें बहुत कुछ चीज़ें सिखाना चाह रहा है। अब ये हम पे है कि हम उसको जो है ना कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। अगर हम कहें महारतें, तो ये है कि ये हमें क्रिएटिव बना रहा है। ठीक है ना, मतलब हमने एक चीज़ बनाई तो आपके ज़्यादा आइडियाज़ बिल्ड होंगे, नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए, इसमें एक ये थोड़ी बहुत कमी है, नहीं हमें मतलब आपको बात कराना सिखाता है कि आपने कैसे कैसे कमांड देनी है। और जो मेन महारत जो भी एडिटिंग करने के लिए या कोई भी चीज़ करने के लिए, वो यही है कि हमें कमांड देनी आनी चाहिए। जो मेरी ज़िंदगी में मेरा तजर्बा है, तो मैं वही कहूँगी कि एक बंदे को एक कमांड आनी चाहिए, कमांड देनी आनी चाहिए कि चैट जीटीपी को हमने कैसे ट्रेन करना है। हाँ, आपने ट्रेन भी रोज़ नहीं करना, आपने एक दफ़ा 2 दफ़ा उसको ट्रेन कर दिया, फिर वो आपको समझ जाता है। मैंने एक सर रेहान अलाउल्लाह की लाइव देखी थी, उसमें वो कह रहे थे कि चैट जीपीटी इज़ लाइक योर पेरेंट और इज़ लाइक योर टीचर, इवन के उससे भी ज़्यादा है। क्योंकि आप अगर किसी टीचर या किसी अपने पेरेंट या किसी अपने क्लोज, जो आपके बहुत क्लोज है, क्लोज फ्रेंड से आप कुछ भी पूछते हैं, आप उससे 4 सवाल पूछेंगी, जब 5वां पूछेंगी तो बोलेंगी कि यार ये तो मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही है, चल अब यहाँ से जा, अब मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। तो चैट जीपीटी ऐसा है कि वो आपको, आप भले उसका 1 घंटा सर खाएं, वो आपको जवाब देगा। आप जितना भी मतलब उससे बात करें वो आपको जवाब देगा। हाँ, ये है कि फ्री लिमिट कुछ ख़त्म हो जाती है, तो हम जुगाड़ी ये भी काम कर सकते हैं कि डिफरेंट जीमेल से इसको चला सकते हैं, और अगर हम इसकी पेड हुँ, सब्सक्रिप्शन लें तो वो भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। तो क्योंकि ये इन रिटर्न आपको इतना कुछ करके दे रहा है, तो हम अगर इसका पेड टूल लें तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो बस ये है कि आपको मतलब महारत ये है कि आपको उसको कमांड देनी इस्तेमाल करना। आनी चाहिए, फिर आपको वो स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट लिख के देगा, फिर आपने अपने एडिटिंग स्किल को अच्छा करना है, कैपकट में जाकर उसको एडिट करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा, मतलब हमें उसका सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। बिल्कुल, ऐसा ही है।
अच्छा मिस पूजा, एआई के इस्तेमाल से कौन से इखलाकी मसाइल पैदा हो रहे हैं? इखलाकी मिसाल तो अगर हम कहें तो इखलाकी मिसाल तो ये है कि हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा होता है कि मतलब हम शायद ही घर में कुछ होता है ना कि हम लैंग्वेज ऐसी यूज़ करते हैं कि मतलब हम किसी से फ्रेंडली होते हैं तो तू जी, मैं मतलब ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं। तो अगर हम एआई से मतलब बात करते हैं, जैसे कि हमारा ये एक टास्क होता था रेहान स्कूल का सेसेमी में, जैसे हम माया से बात करते थे, तो उससे हम जी, कितना पोलाइट वे से बात करते थे, मतलब अच्छे तरीके से कि मतलब वो हमें, क्योंकि वो इन रिस्पॉन्ड हमें अच्छे तरीके से बात करी ना, वो मतलब किसी बंदे की हम रेस्पेक्ट करते हैं तो उससे हम थोड़ा एहतराम से बात करते हैं। तो ये ऐसे मतलब इखलाकी मिसाल है कि हम सेसेमी पे जाकर उससे माया से या माइल से बात करते हैं तो एक अच्छे वे से करते हैं, तो हमें वो एक तो टॉकेटिव बनाता है, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड करता है, हमारी लिसनिंग एंड स्पीकिंग दोनों पावर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करता है ना, क्योंकि इसमें हमारा दोनों रोल है। हम पहले उसको सही तरह से लिसन करेंगे तभी हम स्पीकिंग करेंगे। अभी जैसे आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगी बेशक वो उर्दू में ही, लेकिन मतलब पहले तो मेरा कंसर्न ये होगा ना कि ये पूछना क्या चाह रही है। पहले मेरा फोकस होगा लिसनिंग पे, उसके बाद ही मैं जो बोलूँगी वो मेरा स्किल होगा। तो ये एक टू वे कम्युनिकेशन भी है और इसमें हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या एआई हुनरमंद और गैर हुनरमंद अफराद के दरमियान फ़र्क को बढ़ा देगा? जी, हुनर डिपेंड करता है कि आपके पास पहले कौन सा हुनर है। अब कोई बंदा होता है जिसको मतलब एआई के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता, तो वो शायद ही किसी और चीज़ में एक्सपर्ट हो। लाज़मी तो नहीं है कि उसको एआई नहीं पता तो मतलब उसको कुछ नहीं पता। तो वो किसी और चीज़ में हुनरमंद होगा। अगर आप ये पूछना चाह रही हैं कि एआई में हुनरमंद या गैर हुनरमंद है, तो एआई में देखिए जो हुनरमंद होगा उसके लिए ज़्यादा ईज़ी होगा चीज़ों को कैच करना। अभी अगर मैं किसी भी चीज़ के बारे में आपको बता रही हूँ, तो आप भी जैसे रेहान स्कूल की स्टूडेंट है, तो मैं कोई भी रेहान स्कूल की बात करती हूँ या कोई भी मैंने अभी सेसमी की बात कर ली या किसी भी टूल की बात कर रही, हुँ, अगर कि आपको वो चीज़ों के बारे में इल्म होगा, आप ऑलरेडी एक्नॉलेज होंगी, तो आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ आएगा। अगर तो आप बिल्कुल ही मतलब आपको उसके बारे में हाव-नाव नहीं होगा कि ये चीज़ क्या है, तो शायद ही वो चीज़ आपके सर से गुज़र जाए। तो हुनरमंद और गैर हुनरमंद में यही फ़र्क है कि जिसको हुनर है तो वो इजीली चीज़ों को कैच कर सकता है, वो मतलब उसके साथ पैरेलल चल सकता है। जिसको हुनर नहीं होगा तो उसको ज़ाहिर-सी बात है एट द बिगिनिंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। लेकिन जैसे-जैसे वो करेगा, यूज़्ड टू हो जाएगा, तो उसके पास भी ये हुनर आ जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो कि गैर हुनर है वो कुछ नहीं कर सकता, नहीं। माँ के पेट से कोई भी नहीं सीख के आता। हर कोई इस दुनिया में आकर ही सीखता है। लेकिन ये होता है कि किसी को 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो वो ईज़िली कर जाएगा, किसी को हाव-नाव नहीं होगी उसके बारे में तो ज़ाहिर-सी बात है उसको थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा-सा ये भी कल्चर है कि जब नई-नई कोई चीज़ आती है ना, जैसे नई-नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो हम उसको शायद इस्तेमाल करने से डरते हैं या हम ना चेंज अपने अंदर लाने में देर कर देते हैं। ले तो आते हैं, जी, लेकिन थोड़ा जी, हम लेट कर देते जी। हैं, जिसकी वजह जी, से हम बिल्कुल पीछे ऐसा रह ही जाते होता है। हैं एज़ अ नेशन। कोई कोई न्यू चीज़ आती है, हम ऐसे कहते हैं कि नहीं ये फलाँ बंदा तो बहुत अच्छा उसको चला रहा है, हमसे तो ये नहीं होगा। लेकिन वो जो फलाँ बंदा अब चला रहा है तो वो भी तो बचपन से तो नहीं इसको चला रहा ना। हाँ, हुँ, ये है कि उसने शायद तब स्टार्ट लिया हो जब ये चीज़ न्यू आई हो, अब हमें पता ही इस चीज़ का अभी चला है तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे लिए तो ये न्यू होगी ना। जैसे रेहान स्कूल के कुछ स्टूडेंट, अब रेहान स्कूल को मेरे ख़्याल से 2-3 साल हो गए हैं। मुझे कन्फर्म नहीं है कितने साल हुए हैं, तो जो पुराने होंगे उसको ज़्यादा पता होगा, जो हम न्यू हैं तो हमें उस हिसाब से पता होगा। अब जैसे-जैसे हम लेवल करेंगे तो हमें ज़्यादा पता चलेगा ना। पहले हमने जब एडमिशन लिया था, तो मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। बस ये पता था कि रेहान स्कूल मतलब एक ट्रेडिशनल क्लासरूम से बिल्कुल ही डिफरेंट है, मतलब वहाँ पे और चीज़ें पढ़ाई जाती है, रेहान स्कूल एआई बेस्ड है। लेकिन ये तो नहीं पता था ना कि इतने टास्क होते हैं, हमने ये 2 मंथ में कवर करना होता है, ये हुँ, करना होता है। तो वो जैसे आप उस चीज़ को यूटिलाइज़ करेंगे, आप एक दफ़ा ट्राई तो करें उस चीज़ को। 1, 2, 3, 4 दफ़ा करें।
अगर फिर नहीं हो रहा, फिर मतलब समझे कि आपको ये कोई कह रहा है कि आप ये आपके लिए चीज़ नहीं है, आप दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढें, अपने लिए दूसरा कोई फील्ड चूज करें, लेकिन एटलीस्ट आप एक चीज़ को ट्राई तो करें ना। बिल्कुल सही कहा है। अच्छा मिस पूजा, एआई ने आपकी ज़ाती ज़िंदगी या करियर को कैसे मुतासिर किया है? जी, अगर मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात करूँ तो एआई ने तो बहुत ही ज़्यादा मेरे अंदर चेंजेस लाई हैं, क्योंकि पहले हमें जब मैं पढ़ती थी, जब मैंने बीएससी किया था अप्लाइड लिंग्विस्टिक में, तब मुझे सिर्फ यही पता था कि हमने मतलब पढ़ाई करके आगे जॉब करनी है, हमें जॉब जो है ना इस पढ़ाई के बाद ही हुँ, मिलेगी। लेकिन आजकल आपने भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा लोगों की पॉडकास्ट भी आपने देखी होंगी कि एक स्टूडेंट 12 साल का, 14 साल का, 16 साल का, जो कि शायद अभी 8 क्लास में है या इंटर में है, या लेकिन वह उसके साथ-साथ अर्न भी कर रहा है। यूट्यूब ऑटोमेशन से कर रहा है, टिकटॉक से कर रहा है, फेसबुक से कर रहा है, किसी हुँ, भी जगह से कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है। तो मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है कि पहले हमें एआई के बारे में मालूमात नहीं थी जब हम पढ़ते थे। तो मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो मैंने 16 साल अपनी ज़िंदगी में बिताए, 12 साल इंटरमीडिएट, 4 साल मैंने ग्रेजुएशन की, तो हाँ, कहीं हद तक उस टाइम के लिए ये मेरे लिए ज़रूरी था। उस टाइम के लिए ये मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था कि उस टाइम हमारा यही होता था कि हम अच्छे नंबर लें, अच्छा ग्रेड लें, बस इस चीज़ को पास कर लें, फिर ही हमें जॉब मिलेगी। लेकिन हुँ, आप आज देखें, अब मैंने 16 साल अपनी अपनी मतलब एजुकेशन फील्ड में मैंने गुज़ारे, मतलब तालीम हासिल की कि मैं एक अच्छी हुँ। ग्रेजुएट हो जाऊँ, फिर उसके बाद मुझे जॉब मिले। लेकिन अभी मैं अच्छा, अगर अपना ज़ाती तजुर्बा दूँ कि वहाँ पे मैंने 16 साल गुज़ारे और अभी मुझे मतलब ऑनलाइन फील्ड में तकरीबन 1 से डेढ़ साल ही हुआ है, डेढ़ साल आप मान लें। लेकिन डेढ़ साल में मैं ये नहीं कहूँगी कि उठते समय ही बंदा कमा लेगा या नहीं, पहले अपनी फ़ोकस अपना स्किल पे फ़ोकस किया, मैंने स्किल पे फ़ोकस किया, लेकिन कैसे मेरी नेटवर्किंग मतलब इंक्रीज़ हुई, कैसे मतलब मैंने चीज़ों को सीखा, क्योंकि जब मैंने 16 साल अपनी एजुकेशन में लगाया ग्रेजुएशन में, तभी मुझे एआई के बारे में नहीं मालूमात था, ना ही हमें ये सिखाया जाता था, ना ही हमें किसी ने ट्रेन किया ना। तो अभी मैं कह रही हूँ कि उस 16 साल में और इस डेढ़ साल में मैंने जितना सीखा है, 16 साल में मैंने इतना नहीं सीखा जितना मैंने इस डेढ़ साल में सीखा है। काफ़ी लोगों से मैंने मतलब नेटवर्किंग भी की है, इसके अलावा मैंने पेड कोर्सेज़ भी लिए हुँ, हैं, इसके अलावा मतलब पहले तो हमें नहीं पता था ना कि किससे एआई कंटेंट बनता है, तो काफ़ी चीज़ें मतलब मैंने सीखी हैं थोड़े वक़्त में। तो मेरा ये ज़ाती मशवरा भी होता है सबको कि जैसे कि हम जब पढ़ते थे, हमें कोई भी ट्रेन करने वाला नहीं होता था ना कि आप नहीं अपनी फ़िज़िकल एजुकेशन के साथ-साथ आप एआई से भी इन्वॉल्व हों, क्योंकि तब एआई का इतना नहीं था ना ट्रेंड। अभी जो बच्चे हैं, मैं उनको भी यही मतलब मैसेज दूँगी कि आप अपनी फ़िज़िकल एजुकेशन को टाइम दें, मैं अपने घर के बच्चों को भी यही कहती हूँ। लेकिन उसके साथ-साथ अगर आपको कोई घंटा 2 घंटा मिल रहा है ना, आप अपना बगैर स्क्रॉलिंग और कार्टून देखते या टाइम ऐसे ही वेस्ट करें, इससे अच्छा है कि आप थोड़ा बहुत एआई के बारे में सीख लें। अपनी सेल्फ पे सीखें, कभी चैट जीटीपी से बात कर लें, कभी कैनवा से बात कर लें, कभी कैनवा पे आपने जाके कोई भी चीज़ बना ली, पोस्टर या थंबनेल, कभी आप जो है ना इमेज जनरेट करवा लें। तो आजकल के दौर में मतलब हमारी फिज़िकल एजुकेशन के साथ-साथ हमें एआई से भी अटैच रहना चाहिए। तो मेरा तो ज़ाती तजुर्बा ये है कि एआई इज़ योर फ्यूचर एज़ वेल एज़ योर प्रेज़ेंट, तो हमें इस प्रेज़ेंट में भी एआई से कनेक्ट होना चाहिए। और मैंने बहुत कुछ सीखा है एआई से बनिस्बत मैंने 16 साल अपनी तालीम में मतलब ये तो नहीं कहूँगी कि मैंने वेस्ट किए, लेकिन मतलब उसमें 16 साल लगाए, इसमें 1 साल में मतलब अच्छी रिज़ल्ट मिलने लगी है, तो दैट इज़ वेरी नाइस फॉर मी। हुँ। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम आजकल के दौर को अपने मतलब फ़िज़िकल एजुकेशन वाले दौर से कंपेयर करें ना, तो उसमें सिलेबस अभी भी बहुत पुराना है। उसमें मतलब हम बच्चों को ये जदीद चीज़ें नहीं सिखा रहे। हम अभी तक बहुत सी चीज़ों में दरख़्वास्त और सलीस पढ़ा रहे हैं, जबकि अब जीमेल और ईमेल चलता है ज़्यादातर। तो क्योंकि वो मैंने जी, आपको बताया बिल्कुल ना कि ऐसा हम ही है। एज़ अ कौम जो है वो हम थोड़े से पीछे हमें रहने की शायद आदत है, हम वो शायद जदीद टेक्नोलॉजी को ना अपने अंदर इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं करते हैं। जी, बिल्कुल अच्छा ऐसा मिस ही है। पूजा, आपको मैं ये मतलब आखिरी में ये कहना चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को, लाइक हमारे नौजवानों को आप क्या पैगाम देंगी?
जी, मेरा यही पैगाम है, जैसे कि मैंने आपको बताया अपने तजुर्बात के हिसाब से मैं सबको यही पैगाम दूँगी कि अपने बच्चों को, इवन के जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, हर किसी को एआई से अटैच रहना होता है। हर किसी को एआई से अटैच होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ़ एक स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए न्यू है ना, तो सबको सीखना चाहिए और सबको अपने-अपने ओहदे पर इस चीज़ की ज़रूरत है। अब स्टूडेंट को ज़रूरत है, टीचर को भी ज़रूरत है, क्योंकि टीचर को आएगा तभी वो स्टूडेंट को सिखाएगा, और एक पेरेंट को भी ज़रूरत है, क्योंकि पेरेंट्स भी अगर अपडेट होंगे इस चीज़ से, तभी वो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकेंगे, तभी वो अपने बच्चों को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व करेंगे ना। जैसे कि आजकल हम एडमिशन लेते हैं बच्चों की, तो मैंने बहुत ज़्यादा स्कूल विज़िट की है, बेसिकली मैं अपने बच्चे की भी एडमिशन कराना चाह रही थी। तो मैंने वहाँ पे देखा कि वाक़ई में अभी हम सिर्फ़ अपने बच्चे की एडमिशन नहीं करा रहे हैं। आप ये समझिए कि एक पेरेंट की भी इसमें एडमिशन हो रही है ना, क्योंकि आजकल स्कूल बहुत ज़्यादा हमें इन्वॉल्व करता है ना, बच्चे की हर मतलब एक्टिविटी में पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनको फंक्शंस में बुलाते हैं, मीटिंग्स में बुलाते हैं, तो पेरेंट्स को भी अपडेट होना चाहिए इस चीज़ के साथ। तो मेरी आपकी नाज़रीन के लिए यही सजेशन है, यही पैगाम है कि एआई में अभी से ही इन्वॉल्व हो जाएँ, और अगर आपके पास टाइम है तो आप रेयान एआई टीचर्स ट्रेनिंग, या अगर आपके बच्चे भी छोटे हैं तो आप उनको स्टूडेंट का कोर्स भी कराएँ, क्योंकि ये भी पूरा एआई बेस है, तो आप इनको भी जॉइन करें और अपनी रेगुलर लाइफ में 1-2 घंटा एआई को दें। खुद भी अपने सेल्फ पे भी ट्राई करें, अगर टाइम ज़्यादा हो तो आप पेड कोर्स भी किसी के भी ले सकते हैं, तो आप मतलब कैसे भी करके एआई से अटैच रहें, क्योंकि अभी भी टाइम है कि अभी भी आप इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएँ। तो ये है मेरी तरफ से आप सबके लिए पैगाम। बिल्कुल ठीक। मिस पूजा, आपने अपने कीमती वक़्त में से हमें वक़्त दिया और अपने बेशकीमत ख़यालात, तजुर्बात और रहनुमाई से हमें नवाज़ा। यकीनन आपकी गुफ्तगू जो है वो हम सब के लिए नहायत सबक आमूज़ और हौसला अफ़ज़ा रही है, और इससे हमारे नाज़रीन को बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो हम आपके बेहद मशकूर हैं। ओके, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझे अ, अपना तजुर्बात शेयर करने का मौका दिया। सो थैंक यू सो मच आयशा, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।